ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ عشرت جہاں کیس، ڈی جی ونجارہ اور این کے امین کی ڈسچارج عرضی مسترد۔ مظفر پور شیلٹر ہوم ریپ کیس، سماجی فلاح و بہبود کی وزیر منجو ورما نے دیا استعفیٰ۔ دہلی اسکول بس میں 9 سالہ بچے کا جنسی استحصال معاملہ درج۔ دہلی 5 سالوں میں فضائی آلودگی نے لی 981 لوگوں کی جان، 17 لاکھ لوگ ہوئے متاثر۔ آسام سے کشمیر، مسلمانوں کے سروں پر لٹکتی شہریت کی تلوار۔ ہریانہ گو تسکری میں پھنسانے کی دھمکی دے کر مانگے 50 لاکھ، 2 گو رکشک گرفتار۔ دہلی کانوڑیوں نے پولیس کے سامنے کار پر برسائے ڈنڈے۔ راہل نے لگایا مودی پر الزام، خواتین مظالم پر رہتے ہیں خاموش۔ این آر سی پر سپریم کورٹ نے پرتیک حزیلہ اور رجسٹرار کی سرزنش کی، عدلیہ پر مکمل اعتماد، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، مولانا ارشد مدنی کا بیان۔ سونیا گاندھی نے اسٹالن کو لکھا جذباتی خط، بولیں والد جیسے تھے میرے لیے کرونہ ندھی۔ راجیہ سبھا ڈپٹی چیئرمین انتخابات، محبوبہ مفتی نے زہر کے گھونٹ پینا جاری رکھا، عمر عبداللہ کا بیان۔ دیوریا گرلز شیلٹر ہوم جنسی استحصال معاملے پر راجیہ سبھا میں نہیں ہو سکا وقفہ صفر۔ سیدی بشیر مسجد، اسے کہتے ہیں جھولتی میناروں والی مسجد۔ ایران سے کاروبار کرنے والے امریکہ کے ساتھ تجارت نہیں کر سکیں گے، ٹرمپ کا اعلان۔ یمنی فوج نے حوثیوں کا طیارہ مار گرایا، صعدہ میں شدید لڑائی۔ ترکی ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھے گا، فاتح دوئنمیز کا بیان۔ انڈونیشیا زلزلے سے ہزاروں افراد بے گھر، خوراک اور پینے کے پانی کی قلت۔ سعودی عرب نے لگائی کینیڈا میں تمام طبی علاج پروگراموں پر روک۔ شام خصوصی فوج تیار کر چکا ہے، ملکی دفاع کے لیے تیار ہیں، اسرائیل کا بیان۔ امریکہ کے مقامی انتخابات میں مسلمان امیدواروں کی ریکارڈ تعداد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر گجرات سے ہے۔ سی بی آئی کی خصوصی عدالت نے عشرت جہاں سے متعلق مبینہ فرضی تصادم کے معاملے میں سابق پولیس افسر ڈی جی ونجارہ اور این کے امین کی ڈسچارج عرضی مسترد کر دی ہے۔ گزشتہ سماعت کے دوران عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پولیس تصادم میں ماری گئی عشرت جہاں کی ماں شمیمہ کوثر نے اس کیس سے منسلک حکام کو الزام سے آزاد نہ کرنے کی گزارش کورٹ سے کی تھی۔ عشرت جہاں کی ماں کی جانب سے موجود وکیل نے کورٹ کو بتایا تھا کہ ان افسران کو الزام سے آزاد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ان کے خلاف پختہ ثبوت ہیں۔ دونوں ملزم افسر اس وقت تصادم کی جگہ موجود تھے۔ تمام دلیلوں کو سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا۔ غورطلب ہے کہ 15 جون 2004 کو عشرت جہاں اور 3 دوسرے لوگوں کو تصادم میں مار گرایا تھا۔ یہ تصادم احمد آباد میں ہوا تھا۔ ستمبر 2009 میں ہی احمد آباد میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ایس پی تمانگ نے اس تصادم کو فرضی قرار دے دیا۔ گجرات پولیس نے عشرت کے ساتھ 3 اور لوگوں کو تصادم میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن یہ دعویٰ سی بی آئی کی نگاہ میں سراسر جھوٹا ہے۔ مارے جانے سے پہلے یہ تمام لوگ پولیس حراست میں تھے۔ اس فرضی انکاؤنٹر کو آئی بی کی ملی بھگت سے انجام دیا گیا تھا۔ پولیس نے اس معاملے میں گجرات پولیس کے 6 افسروں کے علاوہ سی بی آئی کے 2 افسروں کو بھی ملزم بنایا ہے۔ سی بی آئی نے یہ بھی کہا ہے کہ مارنے سے پہلے عشرت سمیت 4 کو بے ہوشی کی دوا دی گئی تھی۔ اب خبر بہار سے۔ بہار کے مظفر پور شیلٹر ہوم ریپ کیس میں شوہر کا نام آنے کے بعد بہار کی سماجی فلاح و بہبود کی وزیر منجو ورما نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ معاملے کے اہم ملزم برجیش ٹھاکر کی کال ڈیٹیلز میں کئی مرتبہ اس کے اور منجو ورما کے شوہر کے درمیان بات چیت کا انکشاف ہوا تھا۔ اس کے بعد بدھ کو عدالت میں پیشی کے دوران بھی ملزم برجیش ٹھاکر نے منجو ورما کے شوہر سے اپنے تعلقات کا اعتراف کیا تھا۔ بہار کی اس ہائی پروفائل کیس میں اپوزیشن پارٹیاں مسلسل منجو ورما کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بھی معاملے میں منجو ورما کا نام آنے کے بعد کہا تھا کہ اگر وہ قصوروار پائی جائیں گی تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایک اخبار کی رپورٹ کے مطابق برجیش ٹھاکر اور منجو ورما کے شوہر کی 7 مرتبہ بات چیت ہوئی تھی۔ انکشاف سی ڈی آر کی جانچ میں ہوا تھا۔ کیس کی تفتیش کر رہی سی بی آئی سی ڈی آر کی جانچ میں مصروف ہے۔ منجو ورما کے شوہر چندر شیکھر ورما شیلٹر ہوم میں کئی مرتبہ آنے جانے کا پہلے ہی انکشاف کر چکے ہیں۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ دہلی پولیس نے 9 سال کے بچے کے ساتھ جنسی استحصال اور بدسلوکی کے معاملے میں 3 طالب علموں کے خلاف معاملہ درج کیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق یہ معاملہ وویک وہار کا ہے۔ یہاں ایک پرائیویٹ اسکول میں 4تھی جماعت میں پڑھنے والے 9 سال کے ایک طالب علم کے ساتھ اسکول بس میں کچھ سینئر طلبہ نے
बदसलूकी की थी। इसके बाद पुलिस ने जिनसी जराइम से मुतालिक एक्ट पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे के वालिदैन ने सोमवार को शिकायत दर्ज कराई थी। बच्चे ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा है कि मुलजिम ने 27 जुलाई, 30 जुलाई और 1 अगस्त को उसके साथ गलत काम किया था। बच्चे के मुताबिक उसने उसकी शिकायत असातिज़ा से भी की थी, लेकिन उन्होंने उसको संजीदगी से नहीं लिया और कहा कि वो बहुत क्यूट है, इसलिए सीनियर बच्चे उसके साथ मजाक कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक पुलिस असिस्टेंट कमिश्नर मेघना यादव ने कहा है कि मामले में स्कूल इंतजामिया के रोल की जांच की जा रही है। दरी असना स्कूल ने इन इल्जामात को रद्द किया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में 2013 से 2017 के बीच में ARI की वजह से 981 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और करीब 17 लाख लोग इस बीमारी से मुतासिर पाए गए। पार्लियामेंट में मंगल को स्टैंडिंग कमेटी की एक रिपोर्ट में बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली NCR में फिजाई आलूदगी से मुतालिक बीमारियों का ज्यादा खतरा है। NBT के मुताबिक कमेटी ने फिजाई आलूदगी को देखते हुए मुतल्लिका अथॉरिटीज़ के साथ 3 मीटिंग भी की हैं। कमेटी का कहना है कि दिल्ली में फिजाई आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारियों और सेहत को होने वाले नुकसान को देखते हुए वजारत माहौलियात को वजारत सेहत के साथ जल्द से जल्द ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। कमेटी ने कहा कि इस फिजाई आलूदगी से सबसे ज़्यादा मुतासिर छोटे बच्चे, नौज़ायदा और दम्मा के मरीज़ हैं। कमेटी ने वजारत सेहत को बेदारी की मुहिम चलाने के लिए भी कहा है ताकि लोगों को फिजाई आलूदगी की वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में बेदार किया जा सके। अब खबर आसाम से। क्या सितम ज़रीफ़ी है कि एक तरफ हिंदुस्तान के शिमाली मशरक़ी सूबे आसाम में मकामी हिंदू आबादी की नस्ली और लिसानी बरतरी कायम रखने के लिए 40 लाख अफराद को बांग्लादेशी बताकर शहरियत से महरूम कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर की नस्ली, लिसानी व मजहबी शनाख्त को ख़त्म करने के लिए आइन की दफ़ा 35A को ख़त्म करने की कोशिशें हो रही हैं। एलानिया दोहरे पैमाने सिर्फ इसलिए इख्तियार किए जा रहे हैं कि आसाम की 35% और जम्मू कश्मीर की 68% मुस्लिम आबादी हिंदू फ़िरका परस्तों और मौजूदा हिंदुस्तानी हुकूमत की आंखों में कांटे की तरह खटक रही है। मंसूबा है कि आइन की इस शिक को ख़त्म करके हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से हिंदू आबादी को कश्मीर में बसाकर मकामी कश्मीरी मुसलमानों को अपनी ही वतन में अक़लियत में तब्दील कराया जाए। वहीं आसाम में बरसों से मुकीम बंगाली मुसलमानों को गैर मुल्की करार देकर उनको बर्मा के रोहिंग्याई मुसलमानों की तरह दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर करा के हिंदू आबादी को सियासी और आबादियाती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नेशनल रजिस्टर ऑफ स्टडीज़ यानी शहरियों की फहरिस्त जो 31 जुलाई को जारी हुई है, इनमें जिन अफराद के नाम शामिल नहीं हैं, इनमें हिंदुस्तान के मरहूम सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद का ख़ानदान, आसाम की साबिक़ वज़ीर आला सईदा अनवरा तैमूर और उनकी फैमिली, रियासत असम्बली के पहले डिप्टी स्पीकर अमीरुद्दीन का ख़ानदान, नीज़ हिंदुस्तानी फ़ौज, नीम फ़ौजी तंजीमों और पुलिस के कई आला अहदेदार उनके अइज़ा व अक़ारिब शामिल हैं। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसे मुक़्तदर अफराद का नाम या उनके ख़ानदान को शहरियत की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। अब खबर नई दिल्ली से। हरियाणा के फरीदाबाद में गौ तस्करी के नाम पर फिरौती मांगने के इल्ज़ाम में पुलिस ने एक गौरक्षक ग्रुप के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इल्ज़ाम है कि दोनों फरीदाबाद के एक बड़े कारोबारी से गौरक्षा का डर दिखाकर 50 लाख की मांग करने की कोशिश में थे। दोनों एक गौरक्षक ग्रुप के मेंबर हैं। पकड़े गए दोनों लोग नोएडा की एक कंपनी में बड़े ओहदे पर थे। पहले दोनों ने चोरी का मोबाइल खरीदा, फिर उससे कारोबारी को फ़ोन करने लगे। आज तक के मुताबिक फ़ोन पर कारोबारी से कहा गया कि अगर वो उनको 50 लाख रुपए नहीं देंगे तो उनके बेटे की जान को खतरा होगा। कारोबारी ने फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच में शिकायत की कि उनको कोई अनजान शख्स धमकी देकर 50 लाख की मांग कर रहा है। कारोबारी ने पुलिस को यह भी बताया कि दोनों ने खुद को गौरक्षा ग्रुप का मेंबर बताया है। इस बीच पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान राहुल और शशि के तौर पर हुई है। पकड़े जाने पर दोनों ने बताया कि एक छीना हुआ मोबाइल उन दोनों ने अनिल नाम के शख्स को बेचा है। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि वही मोबाइल है जिससे कारोबारी को धमकी दी जा रही है। उसके बाद पुलिस ने अनिल को पकड़ लिया। पकड़े जाने पर अनिल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अनिल की निशानदही पर इसका दोस्त भी पकड़ा गया। दोनों ने पुलिस को बताया कि वो गौरक्षा ग्रुप से जुड़े हैं। अब पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है। वहीं पुलिस ये भी पता लगा रही है कि इन दोनों के अलावा इस साजिश में और लोग भी जुड़े थे या फिर पूरी साजिश इन दोनों ने अकेले ही की थी। दोनों ने पुलिस को बताया कि उनको ये आइडिया टीवी पर आने वाले क्राइम शो को देखकर आया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है। साथ ही दोनों मुलजिमों से पूछताछ की जा रही है। एक और खबर नई दिल्ली से। दिल्ली के मोती नगर इलाके में मंगल की शाम कानूड़ियों ने जमकर हंगामा किया है। खबरों के मुताबिक सड़क से गुजरी एक कार के छू भर जाने से
कानूड़ियों ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। मामले की इत्तला पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस एहलकारों ने उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ और वो कार के साथ तोड़फोड़ करते रहे। हालांकि इस मामले के दौरान कार में सवार लोग बहिफाजत निकाल लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मोती नगर में मंगल की शाम उस वक्त हंगामा मच गया जब वहां से गुजर रहे कानूड़ियों से एक कार हल्की सी छू गई। इस बात को लेकर कानूड़िये तशद्दुद पर उतर आए। कार में सवार लोगों ने कानूड़ियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने डंडे से कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पीसीआर पर जानकारी मिलती कुछ पुलिस एहलकार वहां पहुंचे, लेकिन वो तमाशा देखते रहे। बाद में पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं रुके। उन्होंने पुलिस एहलकारों के सामने ही कार को सड़क पर पलट दिया। और खबर नई दिल्ली से, कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने खवातीन और बच्चियों की असमदरी के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए आज कहा है कि हैरत की बात है कि तमाम उमूर पर बोलने वाले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खवातीन पर मजालिम के ताल्लुक से खामोश हैं। मिस्टर गांधी ने यहाँ खवातीन हुकूक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिन रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की क़ियादत वाली हुकूमतें हैं, मिस्टर मोदी उन रियासतों में खवातीन और बच्चों के साथ होने वाले जराइम पर कुछ क्यों नहीं बोलते। बिहार के मुजफ्फरपुर और उत्तर प्रदेश के देवरिया में बच्चों के घर में बच्चियों की असमदरी के वाकयात के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म सब चीज़ों के बारे में बोलेंगे, लेकिन खवातीन पर वार होता है तो वो ये एक लफ्ज़ भी नहीं बोलते। एक और खबर नई दिल्ली से, एनआरसी के मामले में आज 5 अलग अलग मामलों में पैरवी करने वाले जमीयत उलमा हिंद के वकला सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, सीनियर एडवोकेट इंद्राजीत सिंह और वकील ऑन रिकॉर्ड फुजैल अय्यूबी जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस रोहंटन फाली नरीमन की खुसूसी बेंच के सामने पेश हुए। तो एनआरसी के प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेटर प्रतीक हजीला और रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया स्लेश वहां पहले से मौजूद थे। इस मामले पर समाअत के बजाय फाजिल जजों ने अंग्रेजी रोजनामा इंडियन एक्सप्रेस में शाये होने वाले प्रतीक हजीला और शैलेश के उस इंटरव्यू पर सख्त बरहमी का इजहार किया जिसमें उन्होंने एनआरसी के हवाले से बात की थी। अदालत ने इन दोनों से सवाल किया कि जब एनआरसी को लेकर मुकदमात अदालत में जेर समाअत हैं तो उन्होंने मज़कूरा अखबार को इंटरव्यू क्यों दिया। फाजिल जजों ने यह भी कहा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ही एनआरसी का काम देख रहे हैं, इसलिए आप लोग जो कुछ कहेंगे उसे अदालत की मंशा या राय ही समझा जाएगा। अदालत ने कहा कि ऐसा कहे कि आप लोग तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं, लेकिन चूंकि आप लोग एनआरसी की तैयारी जैसे अहम काम में मसरूफ हैं, इसलिए अदालत आपकी इस गलती को दरगुजर करती है। एक और खबर नई दिल्ली से, सोनिया गांधी ने स्टालिन को खत लिखकर करुणानिधि के इंतकाल पर गम का इजहार किया है। इसमें उन्होंने लिखा कि करुणानिधि का जाना मेरे लिए निजी नुकसान जैसा है, वो मेरे वालिद के जैसे थे। उनके इंतकाल ने हमारे मुल्क ने लीडर खो दिया। हमें उनके जैसी क़ियादत शायद अब कभी देखने को न मिले। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट से इजाज़त मिलने के बाद मरीना बीच पर अन्ना दुरई की समाधि के बगल में करुणानिधि की कब्र के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया था। इस दरमियान अन्ना समाधि की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। वाज़ेह के डीएम के सदर करुणानिधि का मंगल को तवील आलात के बाद चेन्नई के कावेरी अस्पताल में इंतकाल हो गया। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई से मुतासरा 94 साल यम करुणानिधि को कुछ दिन पहले ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था। कुछ दिनों से उनकी हालत में सुधार देखा जा रहा था, लेकिन पीर की शब उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। डॉक्टर उनकी सेहत पर मुसलसल नज़र बनाए हुए थे और आईसीयू में खुसूसी डॉक्टरों का एक पैनल उनका इलाज कर रहा था। कावेरी अस्पताल ने एक प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की इत्तला दी थी। 5 बार तमिलनाडु के वजीर आला और 12 बार असेंबली के रुकन रहे डीएमके के सरबराह करुणानिधि भी ऐसे ही एक शख्स थे। हिंदुस्तानी सियासत में करुणानिधि एक अलग ही शनाख्त रखते थे। उनके मद्दा उन्हें कलाइनार कहकर बुलाते थे। इसका मतलब होता है तमिल आर्ट का माहिर। और ताद में रिकॉर्डिंग उनकी आखिरी रसूमात पूरी हो चुकी थी। अब खबर श्रीनगर से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के अहदे के लिए जुमेरात को होने वाले इंतखाबात की वोटिंग में हिस्सा न लेने के फैसले पर कहा है कि महबूबा मुफ्ती ने जहर की घोट पीना जारी रखा है। उन्होंने बुध के रोज़ कश्मीर के मकामी रोजनामे की खबर जिसकी सुर्खी कुछ यूँ थी, पीडीपी की बीजेपी पर एक और मेहरबानी, पार्टी के अरकान पार्लियामान डिप्टी चेयरमैन के अहदे के लिए होने वाली वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, कल महबूबा मुफ्ती और उनकी सोशल मीडिया आर्मी मुझसे नाराज़ थी। मोहतरमा ने जहर की घोंट पीना जारी रखा है और अपने सरदर्द के लिए हमें जिम्मेदार ठहरा रही है।
खबर नई दिल्ली से। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अरकान ने उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में वाक़ गर्ल्स शेल्टर होम में बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल के मामले पर मंगल को राज्यसभा में भारी हंगामा किया है, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई थी, जिससे वक्फे सिफर नहीं हो सका। सुबह कार्रवाई शुरू होने पर साबिक रुकन आर के धोन को खिराज अकीदत दिए जाने और ज़रूरी कागजात ऐवान के टेबल पर रखे जाने के बाद चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने वज़रा से कहा कि बगैर चेयरमैन की इजाज़त के मुतालिका वज़ीर की गैर मौजूदगी में दूसरे वज़ीर बयान नहीं देंगे। इसके साथ ही उन्होंने अरकान से कार्रवाई शुरू होने से 5 मिनट पहले आने और कार्रवाई में मुदाखलत न करने और बिल पर बहस के दौरान ऐवान में मौजूद रहने की अपील भी की। देवरिया में वाक़ गर्ल्स शेल्टर होम में बच्चों की जिनसी इस्तेहसाल के मामले पर मंगल को राज्यसभा में भारी हंगामा हो गया। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने देवरिया गर्ल्स शेल्टर होम जिनसी इस्तेहसाल मामले को उठाया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के रुकन भी उनके साथ हो गए। इससे ऐवान में हंगामे के से हालात पैदा हो गए, जिसकी वजह से चेयरमैन ने कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। अब खबर अहमदाबाद से। अहमदाबाद में वाक़ सय्यदी बशीर मस्जिद को झोलती मीनार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ किसी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी वाली मीनार अपने आप कुछ देर बाद हिलने लगती है। इसलिए मस्जिद की मीनारों को झूलती मीनारें कहा जाता है। यह अजूबा इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट की दुनिया को हैरत में डाल देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि झूलती मीनारें आज भी राज हैं। इन मीनारों के बारे में इंजीनियर्स मुख्तलिफ राय पेश करते हैं, लेकिन वो इस आर्किटेक्ट का असली राज आज तक नहीं समझ सके हैं। इतना ही नहीं, बरतानवी हुक्मरानी में इस राज को हल करने के लिए बरतानिया से इंजीनियर्स बुलाए गए थे। मीनारों के आसपास खुदाई भी की गई, लेकिन तमाम कोशिशें बेफजूल रहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सैकड़ों बार ज़लज़ले के झटकों से यहाँ की ज़मीन हिली, लेकिन ये मीनार वैसी की वैसी ही खड़ी है। इन मीनारों के हिलने की वजह ढूंढने की कोशिश की गई। ऐसा अंदाज़ा है कि ये मीनारें अनजाने में ही झूला बन गई हैं, जिसे आगे चलकर साबित भी किया गया। एक तहकीक के नताइज में मालूम हुआ कि मीनारें लचकदार पत्थरों से बनाई गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पत्थर सबसे पहले राजस्थान में पाया गया था। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस किस्म के पत्थर कुदरती तौर पर हैं। फिल्स्पार एक ऐसा मादा है जो हल्के से हल्के एसिड में भी घुल जाता है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियों की निफाज के बाद तेहरान के साथ कारोबारी रवाबित रखने वाले ममालिक के लिए सख्त तंबीह जारी की है। समाजी राबितों की वेबसाइट और ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने ऐसे ममालिक को मुखातब करते हुए कहा है कि अगर वो ईरान के साथ कारोबार करते हैं तो अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर के हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद ईरान पर मंगल की सुबह से पहले मरहले की पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। इन पाबंदियों में ईरान के मुख्तलिफ शोबों को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान की तेल की दरामद पर पाबंदियां नवंबर से लागू होंगी। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि इससे कबल इतनी सख्त पाबंदियां कभी नहीं लगाई गई थी और नंबर में ये और सख्त कर दी जाएंगी। मैं सिर्फ आलमी अमन का मुतालबा कर रहा हूँ। बजाय सदर ट्रंप की ट्वीट यूरोपीय यूनियन के ममालिक की जानिब इशारा है, जिनकी जानिब से कहा गया था कि वो अमरीकी इक़दामात की मुखालिफत करते हैं और उन्होंने अपनी कंपनियों की जायज़ तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का अहद किया है। अब खबर यमन से। अस्करी ज़राए के मुताबिक यमनी फ़ौज और हूसियों के दरमियान जौफ और सादा में शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद फ़ौज ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। बताया गया है कि इन झड़पों में मुतादिद हूसियों के हलाक या ज़ख्मी होने की इतलात हैं, जबकि यमनी फ़ौज सादा के कस्बे अल हशवा के करीब पहुँच चुकी है। यह भी मालूम हुआ कि यमनी फ़ौज ने हूसियों का एक तैयारा मार गिराया है, जो कि इलाके पर गश्त कर रहा था। अब खबर तुर्की से। तुर्की के वजीर तवानाई व कुदरती वसाइल फातेह दोनमेज़ ने कहा है कि ईरान के साथ की जाने वाली तिजारती कानूनी हैसियत से जायज़ तिजारत है और उसे जारी रखा जाएगा। फातेह दोनमेज़ ने एक प्राइवेट टेलीविज़न चैनल की बराह रास्त नशरियात में एजेंडे से मुतालिक सवालात के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि तवानाई में महफूज रसद निहायत दर्जे अहमियत के हामिल है और तुर्की के ईरान के साथ बहुत माजी से चले आने वाले पेट्रोल और कुदरती गैस की दरामद समेत तिजारती ताल्लुकात पाए जाते हैं। दोनमेज़ ने कहा कि कुदरती गैस की दरामद एक तवील मुद्दत माहदे के तहत की जा रही है। इस माहदे की मुद्दत 2026 तक यानी 2026 तक है और ये मुआहदा जारी रहेगा। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया में हुक्काम ने बुध के रोज़ एक ऐलान में बताया है कि जजीरा लोम्बोक में आने वाले ज़लज़ले के 3 रोज़ बाद 70,000 से ज़्यादा बेघर अफराद नापायदार पनागाहों में सोने पर मजबूर हैं और उन्हें खुराक, पीने के पानी और दवाओं की किल्लत का सामना है। इतवार की शाम 6.9 दर्जे शिद्दत के साथ आने वाले ज़लज़ले के नतीजे में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कम अज़ कम 105 इंडोनेशी शहरी जाँ बहक
اور 236 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک ہفتے قبل ایک دوسرے زلزلے کے سبب مذکورہ آتش فشاں جزیرے میں 17 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ لومبوک جزیرے کے خوبصورت ساحلوں کے سبب سیاح بڑی تعداد میں یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں زلزلے سے ہزاروں گھروں کو نقصان پہنچا، جبکہ طبی ٹیموں اور بنیادی نوعیت کے مواد میں کمی کا سامنا ہے۔ اب خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب نے کینیڈا میں اپنے تمام طبی علاج پروگراموں پر روک لگا دی ہے اور کینیڈا میں علاج کر رہے مریضوں کو وہاں دوسرے ممالک کے اسپتالوں میں منتقل کرنے کے لیے تال میل قائم کر رہا ہے۔ سعودی عرب کی پریس ایجنسی نے امریکہ اور کینیڈا کے ساتھ صحت کی خدمات کا ذمہ سنبھالنے والے ڈاکٹر فہد بن ابراہیم التمیمی کے حوالے سے بدھ کو الصبح یہ اطلاع دی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب نے کینیڈا کے ساتھ تمام نئے کاروبار اور سرمایہ کاری پر بھی روک لگا دی ہے۔ سعودی نے یہ قدم کینیڈا کی اس اپیل کے بعد اٹھایا جس میں ریاض میں گرفتار کیے گئے شہری حقوق کے قانون کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے کینیڈا کی اس مانگ کو اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے۔ اب خبر فلسطین سے۔ اسرائیلی وزیر دفاع آویگڈور لائبرمین نے کہا ہے کہ ہماری فوج شام کے خلاف ہر قسم کی ضروری تدابیر اختیار کیے ہوئے ہے۔ گولان کی مقبوضہ پہاڑیوں پر متعین فوجی دستے سے خطاب کے دوران اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ اسد انتظامیہ نے ایک خصوصی فوج تیار کی ہے جس کی پیشہ ورانہ مہارت کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، لہٰذا ہم کسی منفی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل نے گولان کے علاقے پر سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا۔ اب خبر امریکہ سے۔ امریکہ میں ماہ نومبر میں متوقع مقامی انتخابات میں مسلمان امیدواروں کی ریکارڈ تعداد شرکت کر رہی ہے۔ الجزیرہ کی خبر مانیں تو امریکہ میں 90 سے زیادہ مسلمان مقامی انتخابات کے لیے امیدوار کھڑے ہوئے ہیں۔ امیدواروں میں سے زیادہ تر ریپبلکن پارٹی سے ہیں اور 11 ستمبر 2001 کے حملے کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ انتخابات میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان امیدوار کھڑے ہوئے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس اضافے کی وجہ ٹرمپ کے مہاجرین مخالف بیانات اور ان کے سبب مسلمانوں کے مقامی اور قومی سطح پر اپنی نمائندگی کے لیے پالیسی میں داخل ہونے کی خواہش ہے۔ انتخابات میں ریپبلکنز کی طرف سے میکیگن سے کھڑے ہونے والے 33 سالہ عبدالسعید اگر آج متوقع ابتدائی انتخابات میں کامیاب ہوتے ہیں تو ملک کے پہلے مسلمان گورنر بننے سے ایک قدم اور قریب ہو جائیں گے۔ ریاست اوریزون سے سینٹ امیدوار، وکیل اور انسانی حقوق کے علمبردار دیدرا عبود اور واشنگٹن ڈی سی سے مقامی کمشنروں کے لیے انتخابات لڑنے والے عامر قطب ایسے مسلمان امیدوار ہیں کہ جن کے کامیاب ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلی تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے پھر وہی درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما يسطرون